حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار کی روحانی فیض یافتہ ایک عیسائی دوشیزہ کی یہ سرگزشت پر مبنی ایک تحریر ہے۔ ایک سچی لگن والی عیسائی بچی چرچ کی دعا میں شریک ہوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روحانی رہنمائی کی ارداسیں کرتی۔ اپنے من میں سجے اپنے مسیحا کا تخیل لیے وہ روز عرض پذیر ہوتی اور پھر ایک روز اس کی دعا سنی گئی۔ اس کے من سے اٹھنے والی سرگوشی کو مالک نے منظور و مقبول فرمایا۔ عیسائی بچے کی سچ کو جاننے، پانے اور اس سے جڑنے کی یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے روحانی حظ اٹھائیے اور اپنے حصے کی خیر پر توجہ فرمائیے۔ تو اب سرگزشت شروع کی جاتی ہے۔ بارش کی بوندیں قطرہ قطرہ شازوں کے اطراف میں بہتی پانی کی دھارا میں ٹپ ٹپ کی آواز سے گر رہی تھی۔ چنار کے درخت کی چھایا شازوں کے لیے چھتری بنی تھی۔ چنار کی ٹیک لگائے درخت سے جڑی پتھر کی سل پر بیٹھی وہ برکھا سے برستی بوندوں کی آنکھ مچولی میں مگن تھی۔ ساون کی لڑی کی ہر بوند سنگریزوں پر بہتے پانی میں کسی شرارے کی طرح گر کر بے کراں آب رواں میں شامل ہونے سے ذرا پہلے ایک بلبلے کی مانند اٹھتی اور پھر اپنا وجود گنگناتے پانی میں گم کر دیتی۔ شازو بوندوں کی اس آنکھ مچولی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ بارش کی ننھی منی بوندیں کس وارفتگی سے اپنا آپ دھارا کے سپرد کرنے کے لیے اجلت و بیتابی میں آسمان کی بلندیوں سے گر رہی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، یہ بوندیں کیسی بلند حوصلہ ہیں، کس دیدہ دلیری سے خود کو پانی کی دھارا پر نثار کر کے اپنی انفرادیت ختم کر رہی ہیں، اپنے ہونے کو کیسے گم کر رہی ہیں۔ متوالی بوندوں کی بے دھڑک برسات کو دیکھنے کے لیے شازو نے سر بلند کیا۔ اس کی نظریں چھتری کے جیسے تنے چنار کے شجر کی شاخوں پر پڑی جو اسے موسلا دھار بارش کے بھیگے پن سے بچائے ہوئے تھا۔ ایک شجر کی چھتری چھاؤں نے اسے یخ بستہ پھوار سے بچا کر نظارے کا موقع دیا۔ وہ فرط جذبات سے بوند بوند برستی برکھا کو پانی کی جھاگ اڑاتی دھارا میں ڈھلتا دیکھتی رہی۔ اس کے دیکھنے کا یہ انداز اسے معمول کے منظر نامے میں ہی کچھ عجیب و غریب اور غیر معمولی نظارے دکھا رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی کلیسا سے آئی تھی، اسے ابھی ٹھیک سے پادری کے درس پر غور و فکر کا موقع ہی نہیں مل پایا تھا کہ بادل کی گھٹاؤں کی لڑی لگ گئی۔ جل تھل برستی بارش نے کشمیر پوائنٹ کی طرف بڑھتے سیاہوں کے قدموں میں تیزی پیدا کر دی۔ بل کھاتی ناگن کی طرح کشمیر پوائنٹ کی طرف جانے والی تار کول کی سڑک دیکھتے ہی دیکھتے سنسان ہو گئی۔ اس کی دائیں طرف چرچ، بائیں طرف تار کول کی سڑک، سر پر چنار کی چھایا اور ان پر برستا می۔ وہ چرچ کے سامنے ابھرتے کشمیر پوائنٹ کے موڑ پر فریفتہ تھی۔ وہ اپنی مناجات سے فراغت کے بعد بلا ناغہ سڑک سے ملحقہ اس سیرگاہ میں گڑی پتھر کی بینچ پر آ کر بیٹھتی اور پھر کلیسا میں دیے گئے درس پر غور کرتی، مگر آج وہ ابھی تک یکسو نہ ہو پائی۔ اس کی نظریں ابھی تک چنار کی طرف اٹھی تھی۔ شاخوں سے پھسلتی ایک بوند سیدھی شازوں کی مانگ پہ گری۔ پانی کی ٹھنڈک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر کو خفیف سے انداز میں جھٹکا۔ وہ شاید مانگ میں سندور کی طرح اترنے والے پانی کو جھٹکنا چاہتی تھی یا پھر ذہن کو قرب و جوار کے خیالات سے خالی۔ اسے فارکلید کا انتظار تھا۔ وہ تو چنار کی چھایا کے نیچے بیٹھ کر فارکلید کو سوچنے، سمجھنے اور پیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ مقدس پادری نے اسے آج بھی فارکلید کے متعلق درس دیا تھا۔ وہ فارکلید سب کا مددگار ہوگا، مگر مقدس پادری کے بقول فارکلید کوئی گوشت پوست کا انسان نہیں ہوگا۔ اے پیغمبروں کے پیغمبر، اے روح حق، اے راست بازی اور حق کی عدالت لگانے والے، اے سچائی کی راہ دکھلانے والے، اے ابد تک کے لیے معاون و مددگار، اے میرے فارکلید، مجھ سے کب ملیں گے؟ حضور مسیح نے تو فرمایا تھا کہ ہم آپ کو جانتے ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے من میں بستے ہیں،
मगर आप मुझे क्यों नहीं मिलते? मेरे अंदर मौजन महबूब हस्ती मुझ पर आशिकार क्यों नहीं होते? मैं आपसे दूर क्यों हूँ? मैं आज तक आपको क्यों न पहचान सकी और जान सकी? शाज़ो खामोश इल्तिजाएं करती रही। हालांकि यीशु मसीह ने फरमाया था कि तुम उसे जानते हो, मैं वाकई आपको नहीं जानती, मगर मैं सिर्फ आपकी ही मुंतज़िर रहती हूँ। मैं सरापा इंतजार हूँ। अनगिनत शब रोज बेहिसाब शामें आपकी दीद से आशना होने की चाह में बिता दी, पर इंतजार है कि आत्माम ही नहीं होता। शाज़ो याद तो आज का दर्स कर रही थी, लेकिन फारकुलीत का ख्याल आते ही उसे दर्स भूल गया और कुर्बो जवार का माहौल भी नजरों से ओझल हो गया। बरखा से बरसता पानी, कश्मीर पॉइंट की तरफ जाते स्याह, रूह को मुअत्तर करने वाली खुशकुन हवाएं उसे कुछ सुझाई न दिया। फारकुलीत की याद उसे अपने शहर में घेर रही थी। पारीना साल महबूब की याद उसकी नस नस में सरायत कर रही थी। शाज़ो को ये याद, ये इंतजार जान से भी ज्यादा अजीज था। वो याद से बहर आना ही नहीं चाहती थी। कोई दर्श, कोई आदर्श, कोई दीद, कोई दर्शन, कुछ भी दरकार न था। यादों के इस भंवर में वो किसी बगोले की तरह रक्स गुना थी कि उसकी समाज से एक पुरसोज आवाज टकराई। आवाज मुबहम सी थी, मगर इस अभाम में भी गैर महसूस कशिश थी। ना चाहते हुए भी शाज़ो आवाज की तरफ मुतवज्जह हुई। पुरसोज आवाज का अंतरा बुलंद हुआ। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियां, मैनू न भुलावी, मैनू मेरे साहिबा, हर गल्लू में मुकियां, औगन हारी कोई गुन नाही, बख्श करें ता मैं छुट्टियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियां। तू ओ तू, तू तू, तू ओ तू, तू ओ तू की तकरार ने शाज़ो को बेसुध कर दिया। आवाज की बजाय अब उसका दिल सदाकार की तरफ लपका। उस पुरसोज आवाज के महवर की तरफ उसकी नजरें उठी। पार्क के कोने में तीन दराज जुल्फों वाले साधु, ओ साहिबा मैं तेरी हो मुकियां की लय नवाजी में मगन थे। उनके बीच तीन ईंटें जुड़ी थी। ईंटों के छोटे से मच में नीम गीली लकड़ियां सुलग रही थी। चील की लकड़ियों से उठने वाला धुआं सुरमाई बादलों में रल मिलकर कश्मीर पॉइंट की तरफ जाने वाले लोगों के सरों से बुलंद हो रहा था। धुआं की भीनी भीनी खुशबू, कच्ची मिट्टी पर बारिश से उठने वाली महक और जुल्फे दराज साधुओं ने माहौल को पुरस्कार बना दिया था। उनका कलाम और कलाम में तू ओ तू, तू ओ तू की तकरार ने शाज़ो को सहरज़दा कर दिया। ये साधु उस साहिबा के लफ्जों में किसे याद कर रहे थे? उनका साहिब भी कहीं शाज़ो की तरह फारकुलीत तो नहीं था। शाज़ो साधुओं की हमनवाई करते हुए नवाए जेर लबी से तू ओ तू की सदाबंदी में मस्त हो गई। नगमा के बोल शाज़ो पर झरने के पानी की तरह चार अतराफ से बरसे। वो आवाज के मरकज में घिर गई। उसका रूं रूं समात बना था, ठंडी यख बर्फीली हवा की तरह। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियां के अल्फाज उसके जिस्मो जाम में उतर रहे थे। फारकुलीत का बेसूरत सरापा सजाए वो तू की सदाएं अफलाक पर किसी माहिर गुलकार की तरह टंगती रही। और साधु ओ साहिबा की बारगाह में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोले, जे तू भाले नजर मेहर दी, चढ़ चौबारे सुतियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियां। ये तो गीत का एक एक हर्फ शाज़ो के एहसासात की तर्जमानी कर रहा था। वो भी अपने मन के महाराज की एक मेहर की नजर के लिए यादों के चौबारे पर चढ़ी थी। अनदेखे हबीब की चाह ने उसे बिन कुछ किए ही अपने कुर्बो जवार में सबसे ज्यादा नुमाया कर दिया। महबूब नागहां की याद ही उसकी पहचान बन गई। ये पसंदीदगी उसकी इरादी कोशिशों का नतीजा न थी। मालूम नहीं अपनी जिंदगी के किस समय वो अपना आप अपने मन मोहन महबूब के सुपुर्द कर आई थी। साधुओं के सुरताल ने शाज़ो की तार जोड़ दी। आवाज में अजब सोच था। हालांकि वो अपनी अनगिनत सुलगती शामें यार की याद में तन्हा बिता आई थी, मगर आज से पहले ऐसी फरिफ्तगी उस पर कभी नहीं छाई थी। वो चाहने के बावजूद भी इस कैफ से बाहर निकल नहीं पा रही थी। तू ओ तू, मेरे साहिबा की लय अब मदम पड़ती जा रही थी। आवाज के सहर के कमजोर पड़ते ही वो भी ऐस्तगी से सताए आब पर उभरी। निशात अंगेजी से वो पलटी। उसकी खुमार आलूद पल के ऊपर उठ ही नहीं पा रही थी।
आवाज आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती जा रही थी। वो बेसाख्तगी में उठी। इसी आवाज में तो ही उसकी जिंदगी थी। उसकी अरदासें, तमन्नाएं, हसरतें इसी गीत के सहर से पूरी हो रही थी। शाजो ने उजलत में उस मकाम को देखा जहां कुछ देर पहले 3 साधु अपने यकतारे से सोजो साज छेड़ रहे थे। वो तेजी से साधुओं के समाधि की तरफ बढ़ी। मच को बढ़ा दिया गया था, मगर हल्का हल्का धुआं अब भी बुलंद था। शाजो जल्दी से कश्मीर पॉइंट की तरफ बढ़ी और चढ़ाई की तरफ देखा। उसे दूर से बस साधुओं की दाएं बाएं झूलती जुल्फों के साए नजर आए। वो साधुओं को यूं बिन तारुफ खोना नहीं चाहती थी। वो चर्च में तो कई माहो साल गुजार आई थी, मगर मुकद्दस पादरी के मामूल के दर्स ने उसे कभी भी यूं न छुआ था। वो तो बस एक फर्ज के तौर पर चर्च की इन मजहबी रसूमात के साथ बंधी थी। उसे अपनी अनोखी तलाश का एक सिरा भी चर्च में हाथ न आया। किस्मत ने अचानक यूं बैठे बिठाए यावरी की थी। उसे नफ्स से कल्ब, जहर से बातिन, जिस्म से रूह और बेकैफी से कैफ की तरफ महमेज लगा दी थी। पहली बार उसे अनदेखे फारकुलीत को पाने की एक झलक दिखी थी, मगर ऐसे हसीन तखय्युलात का जादू जगाने वाले अलबेले जोगी जादूगर बेनियाजी से आगे बढ़ गए थे। उन्हें भला राह चलते मुतलाशियों की तलाश और जस्तजू से क्या लेना। शाजो साधु के पीछे लपकी और यकतारे वाले साधु चुपचाप सामने वाला मोड़ मोड़कर उसकी नजरों से ओझल हो गए। शाजो बेताबी और बेकरारी से आगे बढ़ी। उसके मन में जलते दिए की लय टिमटिमाते हुए मध्यम पड़ने लगी। उसकी उम्मीद ना उम्मीदी में ढलने लगी थी। मलका कोहिसार किसी बांकी दुल्हन की तरह सजी थी। पाकिस्तान भर के गर्म खित्तों में झुलसने वाले लोगों के लिए कोह मरी किसी जन्नत अर्जी से कम खूबसूरत मकाम न था। शदीद गर्मियों के मौसम में उन्हें शाम की खुनकी से बचने के लिए गर्म ओढ़नियां पहननी पड़ी थी। जून जुलाई के शदीद गर्म महीनों में गर्म स्वेटर, शालें, ऊनी टोपियां पहनना ही उन्हें सरमस्त कर रहा था। लोग रंग बिरंगे पैरहन में सजे कश्मीर पॉइंट पर इधर उधर घूम फिर रहे थे। गोया मर्री नित नए डिजाइन मुतारिफ कराने का एक स्वयंवर था। बच्चे, बच्चियां, मर्द, खवातीन और बुजुर्ग सरों पर हैट सजाए, हाथों में खूबसूरत बैत की छड़ियां घुमाते माहौल से हज उठा रहे थे। हर फर्द दिलकश और तवज्जो तलब रूप धारे हुए था। सबों की तमन्ना थी कि वो सबसे मुनफरिद नजर आए और कोहे मर्री में मुंडलाती नजरों का महवर बने रहें, मगर एक से बढ़कर सब एक थे। नजर कहीं टिकती ही नहीं थी। ईद के रोज की तरह हर शख्स भरपूर बनाओ सिगार किए हुए था। यूं कोहे मर्री का माहौल अनानियत को आगे से ज्यादा मजबूत और तवाना करने के वाफिर मौके फराहम कर रहा था। शाजो मुतजस्सिस नजरों से अनानियत भरे लोगों के बीच खुद से बेगाना, बेपरवाह और बेनियाज साधु को ढूंढने लगी। कश्मीर पॉइंट का टॉप इतना ज्यादा वसी न था, मगर कुछ चीजें नजरों के सामने होने के बावजूद भी नजर नहीं आती। मतलूबा चीज की तलब ढूंढने वाले को अपने शहर में ले लेती है। यह शहर खुली आंखों से भी नजारे को ओझल कर देता है। शाजो को भी शायद यही मखमसा दरपेश था। वो अपने जिस्म जान की सारी तवानाइयां खर्च करके एक बात की बात में ओ साहिबा का गीत बुलंद करने वाले साधुओं को पा लेना चाहती थी। शाजो की सरासिमगी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसकी मुस्तरब निगाहें लोगों को भी कुछ बावर करा रही थी, मगर भंवरों की तरह मुंडलाते लोग शाजो की बेताब नजरों को खातिर में लाए बिना टॉप हिल पर बनी कैंटीन की तरफ मुतवज्जे थे। अपनी अपनी पजीराई के तलबगार कुछ देर कबल किसी और की पजीराई पर मजबूर हो गए। पुर इसरार हुलिये वाले 3 साधु अभी थोड़ी देर पहले जीपीओ से कश्मीर पॉइंट की तरफ निकलने वाली शहरा पर उभरे। उनमें से एक साधु के हाथ में यकतार वाला कोई मौसीकी का आला था। यकतारे वाला साधु अपने दूसरे साथियों से काफी मुख्तलिफ था, मगर स्याहों के लिए तो उसका रंग रूप किसी अचंभे से कम न था। रॉयल ब्लू रंग का अंगरखा
नुमा फिराक और नीचे चूड़ीदार पजामे में वो किसी अजनबी दयार के शहजादे जैसा लग रहा था। उसकी दाएं बाएं चलते साधुओं ने स्याह पैरहन पहन रखे थे। सबकी नजरें अपने आप पर मरकूज थीं। उनकी यकसोई से लगता था कि गोया उन्हें कुर्बो जवार से कोई गर्ज ही न थी। वो तो बस मलका कौसार, कोहे मर्री के खुशगवार मौसम और दिलपजीर मुनाजिर को भी खातिर में नहीं ला रहे थे। किसी गैर मानूस जबान का गीत उनके लबों पर सजा था। कोई दिल मोह लेने वाली कशिश थी उनमें। लोगों की तवज्जो खामखा उनकी तरफ खींची जा रही थी, मगर वो सब से बेनियाज कैंटीन में लगी अलग थलग कुर्सियों पर जा बैठे। टेबल मैन को शायद चाय का ऑर्डर देकर वो फिर से खुदबीनी में मशगूल हो गए। कैंटीन में उनकी आमद से रश कुछ ज्यादा बढ़ गया। कैंटीन के मुलाजिम जरूरत से कुछ ज्यादा ही इन साधुओं को सर्व करने के ख्वाहिशमंद थे। साधु उनके लिए एक नेमत थे, क्योंकि उनकी आमद के साथ ही उनकी बिक्री में तेजी आ गई थी। चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्टॉक्स आहिस्ता आहिस्ता घटने लगे। कैंटीन में मौजूद सब लोगों की उन पुरस्कार लोगों से तबादला ख्याल की तमन्ना थी, मगर न जाने उन्हें कौन सी बात ने साधुओं के करीब न जाने दिया। लोगों के इस अज़दहाम में शाज़ो भी दाखिल हुई। लोगों की यकसू नजरों के ताक़ुब में उसकी निगाहें पल भर में साधुओं को ताड़ लिया। साधुओं की नजर आते ही उसके दिल की धड़कनें यकलख तेज हुई। वो बिला तवक्कुफ साधुओं की तरफ बढ़ जाना चाहती थी, मगर उसके असाब उसे अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करने दे रहे थे। वो चंद समय अपने हवास मुजतमे करती रही। वो उनके पास पहुंच तो जाए, मगर उनसे कहे क्या? अजनबी और ऊपर से पुरस्कार साधु से बात का आगाज कैसे करेगी? वो मुख्तलिफ बातें सोचती रही, मगर हर बात उसे बेसरोपा नजर आई। वो इस उलझन से निकलने के लिए तेजी से सोच भी रही थी और वक्फे वक्फे से साधुओं को भी देख रही थी। उसे धड़का लगा था कि कहीं साधु उसके पहुंचने से पहले ही वहां से उठ ही न जाएं। साधु अपनी मौज पर सवार रहने वाले अफराद थे। उन्हें किसी की तलाश और इज़्तिराब और सोज और साज से क्या सरोकार था भला। शाज़ो ने नींद निगाहों से उनकी तरफ देखा। 3 साधुओं में से दराज जुल्फों वाले साधु ने एक अछूती सी नजर दूर पर एक खड़े मजमे पर दौड़ाई और फिर उसकी चुभती हुई नजरें शाज़ो पर जाकर थम गईं। तप्पे शदीद से नाजों की धड़कनें दूर से ही बेतरतीब हुई। वो कुछ न समझते हुए बिला इरादा साधुओं की तरफ खींची और किसी मामूल की तरह सर निवाड़े उनके सामने जाकर रुक गई। वो मुंह से एक भी हर्फ अदा किए बिना गुमसुम खड़ी रही। देर गए उसे ताड़ने वाले दरवेश ने अपनी भराई हुई आवाज में कहा, बैठ जाओ। शाज़ो चुपचाप बैठ गई, मगर उसके जहन में अभी तक सुनसनाहटें सुनसना रही थी। उसकी सोच समझ के दिए जूं के तूं बेनूर ही रहे। स्याहपोश साधु ने पहले से ज्यादा काटदार आवाज में पूछा, क्या चाहिए? शाज़ो के लबों से शिकस्ता से अल्फाज में निकला, मददगार। मददगार से शायद उसकी मुराद फारकली थी था। दरवेश भी शायद उसके मन में चलने वाले तखय्युलात की सरगोशियां सुन रहा था और शायद समझ भी रहा था। मददगार के लफ्ज पर यकलख्त उसका सर एहतराम व अकीदत से झुक गया। दूसरे साधु भी सरनगू थे। उन सब की आंखों की सुर्खी में तीरगी के डोरे उभर आए। शाज़ो की हैरत आगे से सिवा हुई। उसकी हालत दीदनी थी। साधु के रवैयों से लगता था कि वो उसके मददगार को न सिर्फ जानते थे, बल्कि उससे इंतहाई अकीदत के रिश्ते में भी बंधे थे। इतनी अकीदत तो उसने कभी मुकद्दस पादरी के लबों पर मददगार फारकुलीद के जिक्र पर भी नहीं देखी थी। वो यकीनन मददगार से आशना थे। शायद उन्हें मददगार की बारगाह में हजूरी भी हासिल हो चुकी थी, या फिर वो भी उसकी तरह मुकद्दस मददगार के हिज्र में सुलग रहे थे। खैर जो भी था, साधु से उसका मिलना बड़ा मुबारक था। अनजाने में तीर निशाने पर बैठा। साधु के पुरसोज अल्फाज ने शाज़ो को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो कह रहा था, तुम्हारा यही सोजो साज तुम्हें मददगार की बारगाह में पहुंचा सकता है। मगर साधु ने मगर के लफ्ज के बाद चुप साध ली। वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो गया था?
साजो दिलो जान से साधु की बात मुकम्मल होने की मुंतजिर थी, पर साधु मगर से आगे कुछ न बोला। साजो ज्यादा देर तक चुप न रह सकी और बेताबी से पूछा, साईं जी, मगर क्या? साधु के लिए साईं जी के अल्फाज ने साधु को फिर से साजो की तरफ नजरें उठाने पर मजबूर किया। वो टिकटिकी बांधे साजो को देखता रहा। साजो साधु की नजरों को अपने रूह में उतरता महसूस करने लगी। ना जाने साजो के मन में पिन्हा किस किस सोच की तलाशी ले रहा था। साधु के मुतवातिर देखने में बरजस्तगी से वक्फा पैदा हुआ। उसकी निगाहें पल भर के लिए नीचे झुकी और वो आहिस्तगी से बोला, मददगार को जिस रूप में तराशोगी वैसा नजर आएगा, मगर हो सकता है वो मददगार तुम्हारी सोचों का नफसियाती अक्स हो। बेहतर यही होगा कि अपने दिल में तराशे हुए सनम के खदोखाल मिटा दो। मन में जलवा अफरोज मददगार को खुद ब खुद अपना आप आशिकार करने दो। मददगार की चाह तो रखो, मगर तसव्वुर और तखय्युल में ना पड़ो। मेरा मकसद है मुंतज़िर तो रहो, मगर इंतजार किसी का ना हो। साजो के कानों की लोएं सुनाने लगी। ये कैसे रहनुमा थे, ये कैसा दर्स था। एक चाह के सिवा बाकी सब हिजाब बता रहे थे। एक याद यानी यकदर गिर व मोहकम गिर, एक का दर पकड़ो और मजबूती से जम जाओ। साजो पर बात शायद वाज़े ना हो सकी। वो उजलत में बोली, साईं जी, अजराए मेहरबानी अपनी बात की वजाहत करें। साधु की आवाज में इस बार जरा बेनियाजी औद आई। हमारे तैयार में वजाहत की बजाय इख्तिसार को पसंद किया जाता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मेरा मतलब है, इख्तिसार को साधु भी ज़राफत की जान समझते हैं। बात सिर्फ एक नुक्ता की है। शक्ल सूरत से सीधा साधा नजर आने वाला साधु शायद पढ़ा लिखा था। इब्तदाई सिरा तुम्हारे हाथ आ चुका है। साधु फिर बोला, आखिरी सिरे की जस्तजू को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लो। साजो ने मुल्तजाना अंदाज में कहा, मगर मैं अपने रूह के महरम को कैसे ढूंढूं? साजो के अल्फाज के थमने से पहले साधु उठ खड़े हुए। शहजादों की तरह सजे साधु ने यकतारे पर अपनी शहादत की उंगली मारी। यकतारे की तार ठनठनाई तो तू तू की बाज़गाश्त फिर से जारी हो गई। यकतारा नवाज ने मनमंदिर के किबला की तरफ रुख करते हुए दर्द अंगेजी में कहा, ढूंढेंदिए सुहाग को तो तन काई कोर, जिन्हा नौ सुहागनी तिन्हा झांकना होर। साधु अपनी स्याह अबाओं को कंधे पर डालकर चल दिए। पूरे मजमा ने उन्हें पुरहसरत नजरों से देखा और साजो के मन में साधु के गुनगुनाते हुए श्लोक का मानी मफहूम जंगली फूल की तरह खुद ब खुद खिल उठा। ऐ सुहाग ढूंढने वाली, अगर तू अब तक अपनी तलाश और जस्तजू में नाकाम रही है तो इसकी वजह यह है कि तेरी अपनी जात में कोई ऐब, कोई खामी और कोई कसर रह गई है। और जो हकीकतन सुहागिन कहलाने की हकदार होती हैं, वो तो सिवाय अपने महबूब के किसी और से उम्मीद ही नहीं लगाती और ना ही उनके दिल में किसी और की चाहत होती है। किसी और के इशारा ने साजो के जख्मों में आग सुलगाना शुरू कर दी। साजो बेचारी उन जख्मों का क्या करती जिन्हें फाहों से आग लग रही थी। साजो दीवानगी से साधुओं के पीछे भागी। अभी तो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं ठहरी थी। उसे तो कुछ भी न बताया गया था। अभी तो कयामत ने दम भी न लिया था कि उसके रख्ते सफर का वक्त आन पहुंचा। वो साधुओं के पीछे लपकी, मगर साधु आन की आन में कश्मीर पॉइंट की अगली जानिब उतरने वाली पहाड़ी की उतराई में उतर गए। वो उन्हें चोटी से उभर कर फिर घाटी में उगे जंगलों में उतरता देखती रही। एक नातवां सी लड़की में दरवेशों के पीछे जां गुसल मुसाफतें पाटने की हिम्मत भला कहाँ थी। वो हाथ मलते रह गई और साधु कश्मीर पॉइंट की रंगीन फजाओं में अपनी साजो बेचारी हाथ है मौके को खो चुकी थी क्या? साधु तो किसी मौज रवां की तरह आगे बढ़ गए थे। साजो के अधूरे मिलन की इस सरगुज़श्त को इस कहानी के अगले एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए।